السلام علیکم بچوں، جیسی ERT DG اسکول کے چھٹی جماعت میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں توحید عالم۔ بچوں، آج ہم اردو قواعد پڑھیں گے۔ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے اردو قواعد میں کلمہ اور اس کے اقسام کو پڑھا تھا۔ آج ہم اسم، فعل اور حرف کے اقسام کو پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اسم کے اقسام کو پڑھیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کے اقسام۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ اسم جامد ایسا اسم جس سے کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلتا اور نہ ہی وہ کسی سے نکلتا ہو، اسم جامد کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ 2 یا 2 سے زیادہ کلموں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، مثلا چاقو، قلم، درخت، پھل وغیرہ۔ اسم مصدر، مصدر کے لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ اسم ہے جو خود کسی سے نہ نکلے لیکن اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق کئی دوسرے کلمے بنے، مثلا رونا، اس سے ہم روتا ہے، روئے گا، یا رو رہا ہے، یا روو وغیرہ کلمے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سونا اور کھونا، لانا وغیرہ۔ اردو میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے۔ مصدر کی تعریف اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ مصدر وہ اسم ہے جس میں زمانے کی قید کے بغیر کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ مصدر کی اس تعریف کی روشنی میں ہم ان الفاظ کو مصدر سے خارج کر دیتے ہیں جن کے آخر میں نا تو ہے مگر وہ کسی کام یا حرکت کا بیان نہیں ہوتے، جیسے گھرانا، سونا۔ سونا یہ دھات والا سونا ہے، جیسے سونا چاندی۔ تانا بانا، کانا اور نانا وغیرہ۔ یعنی ان کلموں میں نا تو لگا ہوا ہے لیکن اس سے کسی کام یا کسی حرکت کا ہونا نہیں سمجھ میں آ رہا، اس وجہ سے یہ مصدر نہیں ہے۔ مصدر کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ علامت مصدر نا کو دور کرنے سے امر کا صیغہ رہ جاتا ہے، مثلا لکھنا سے لکھ، پڑھنا سے پڑھ اور کھانا سے کھا وغیرہ۔ مصدر کو فعل سمجھ لینا درست نہیں، کیونکہ فعل میں کام کا کرنا یا ہونا کسی ایک خاص زمانے کے ساتھ پایا جاتا ہے، لیکن اسم وہ کلمہ ہے جس میں زمانہ اور کام دونوں ساتھ نہیں آتے۔ چونکہ مصدر میں بھی کام پایا جاتا ہے اور زمانہ نہیں، تو ہم مصدر کو اسم مصدر کہیں گے۔ مثلا سونا مصدر ہے لیکن سویا مصدر نہیں۔ اسم مشتق قواعد کی روح سے ایسا اسم جو کسی مصدر سے نکلا ہو لیکن اس سے کوئی اور لفظ نہ نکلے، اسم مشتق کہلاتا ہے۔ مثلا لکھنا مصدر سے لکھنے والا، لکھا ہوا اور لکھائی۔ سجانا سے سجاوٹ، بننا سے بناوٹ وغیرہ سب اسم مشتق ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں: واحد اور جمع۔ شمار کی روح سے اسم کی 2 قسمیں ہیں: ایک ایسے اسما جو صرف ایک ذات کو ظاہر کریں، یا وہ جو ایک سے زیادہ کی تعداد کو ظاہر کریں۔ واحد ایسا اسم جو صرف ایک ذات کے لیے استعمال کیا جائے، واحد کہلاتا ہے، مثلا کرسی، گھوڑا، خبر اور ادب وغیرہ۔ جمع وہ اسم جو ایک سے زیادہ کی تعداد کو ظاہر کرے، جمع کہلاتا ہے، مثلا کرسیاں، گھوڑے، اخبار اور آداب وغیرہ۔ جنس کے لحاظ سے اسم کے اقسام۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں: تذکیر اور تانیث، یعنی مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جو نر کے لیے استعمال ہو، مثلا مرد، بکرا، بادشاہ، غلام وغیرہ۔
मुअन्नस वो इसम है जो मादा के लिए इस्तेमाल हो, मसलन औरत, बकरी, मलिका, लौंडी वगैरह। माना के लिहाज से इसम के दो अक़साम हैं, इसम मारफ़ा और इसम नकिरा। इसम मारफ़ा वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, मसलन अकरम, अरशद, दिल्ली, बनारस, दरियाए सिंध, बादशाही मस्जिद वगैरह। अरशद और अकरम मखसूस अशख़ास के नाम हैं। इसी तरह दिल्ली और बनारस ख़ास शहर हैं। दरियाए सिंध एक ख़ास दरिया का नाम है और बादशाही मस्जिद भी एक मखसूस मस्जिद है जो उसी नाम से मशहूर है। चुनांचे ये तमाम अस्मा इसमें मारफ़ा या इसमें ख़ास कहलाएंगे। इसमें नकिरा वो इसम है जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, मसलन आदमी, शहर, दरिया और मस्जिद वगैरह। इन अस्मा में ना तो किसी ख़ास शख्सियत का ज़िक्र है, ना किसी ख़ास शहर का, और ना ही किसी ख़ास दरिया या मस्जिद का ज़िक्र किया गया है। बच्चों, हमने देखा कि इस्म की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, बनावट के एतबार से, जिन्स के एतबार से, माना के लिहाज से और तादाद के लिहाज से अलग अलग किस्में हैं। अब आइए हम फ़िल के अक़साम को देखें। अक़साम फ़िल बलिहाज़ ज़माना, वक्त जिसका दूसरा नाम ज़माना है, उसकी तीन अक़साम हैं। एक जो गुज़र गया उसको माज़ी कहते हैं, दूसरा जो गुज़र रहा है उसका नाम हाल, और तीसरा आने वाला वो मुस्तक़बिल। तो फ़िल की तीन किस्में हुई ज़माने के लिहाज से, फ़िल माज़ी, फ़िल हाल और फ़िल मुस्तक़बिल। फ़िल माज़ी, माज़ी के माना है गुज़रा हुआ ज़माना, और फ़िल माज़ी से मुराद ऐसा काम जो किसी गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो या ना किया गया हो। मसलन खालिदा आई, उसने सबक नहीं पढ़ा, वो सारा वक्त खेलती रही और फिर चली गई। इस जुमले में आई, नहीं पढ़ा, रही और गई से ज़ाहिर होता है कि काम गुज़रे हुए ज़माने में हुए हैं। फ़िल हाल, क़वाइद की रूह से फ़िल हाल वो फ़िल है जिसमें किसी काम का होना, करना या ना होना, ना करना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। यानी जो काम अभी हो रहा हो उसे फ़िल हाल कहते हैं। मसलन खालिद स्कूल जाता है या खालिद स्कूल नहीं जाता है वगैरह, ये फ़िल हाल की मिसालें हैं। फ़िल मुस्तक़बिल, ऐसा फ़िल जिसमें किसी काम का करना, होना या ना करना, ना होना आइंदा ज़माने में पाया जाए, यानी फ़िल आने वाले ज़माने में ज़ाहिर होगा। अभी फ़िल न सरज़द हुआ है और ना हो रहा है। मसलन खालिद कल आएगा, हमीद आकर खाना खाएगा वगैरह। इस्म और फ़िल के बाद आइए अब देखते हैं कि हर्फ़ की कितनी किस्में हैं। हर्फ़ की 4 किस्में हैं, हुरूफ़ जार, हुरूफ़ अत्फ़, हुरूफ़ तख़सीस और हुरूफ़ फ़ुजाइया। अब अगर हम तफ़सील में जाएं तो इन चारों किस्मों की भी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हम तफ़सील में न जाकर इख्तिसार के साथ देखते हैं कि हुरूफ़ जार क्या है, हुरूफ़ अत्फ़ क्या है, हुरूफ़ तख़सीस और हुरूफ़ फ़ुजाइया क्या है। हुरूफ़ जार या हुरूफ़ रब्त वो हुरूफ़ जो इस्म को फ़िल से या इस्म को इस्म से मिलाते हैं, हुरूफ़ जार या हुरूफ़ रब्त कहलाते हैं। रफ़ीक़ का भाई, इस फ़िक्रे में का हर्फ़ रब्त है। चंद मशहूर हुरूफ़ जार हस्ब ज़ेल हैं, से, का, के, की, को, तक, तलक, ऊपर, पर, बीच, अंदर, दरमियान, साथ, समेत, वास्ते, लिए, बग़ैर, सिवा, तरह, मानिंद, इलावा, बे और बिन वगैरह। हुरूफ़ अत्फ़, हुरूफ़ अत्फ़ वो हैं जो दो कलिमों या जुमलों को बाहम मिलाएं। मसलन
आसिफ और अली दोनों स्कूल गए हैं। इस जुमले में और हर्फ अत्फ है। इसी तरह मैं तुम्हारे पास आऊँगा और रकम लेकर जाऊँगा। इस जुमले में भी और हर्फ अत्फ है। अजहर आया था मगर रुका नहीं। इसमें मगर हर्फ अत्फ है। हुरूफ तख़सीस। हुरूफ तख़सीस ऐसे हरूफ को कहते हैं जो किसी इस्म या फ़िल या ज़मीर के साथ आते हैं तो माना में एक किस्म की खुसूसियत पैदा कर देते हैं। वो हरूफ ये हैं: सी, तो, भी, सही, हर एक, महज, अकेला, तन्हा, बस, तन्हा और फ़कत वगैरह। हुरूफ फुजाइया। ऐसे हरूफ जो जोश और जज्बे की शिद्दत, हसरत और तअस्सुफ़, खुशी व गम, नफ़रत व तहसीन, ताकीद और तंबीह के मौके पर बेतहाशा ज़बान से निकल जाते हैं, हुरूफ फजाइया कहलाते हैं। मसलन हाय अल्लाह, ओह या आह वगैरह जो ज़बान से निकल जाते हैं।